Hello, hello everyone. How are you all? Okay, I hope so. You all fine. Let's start with the gender of nouns. In previous class, we studied about what is noun and the kinds of noun we studied. So let's start with the now gender of nouns. The chapter was not at end, but there are some other noun also, gender noun and what number nouns you can study. In school days, you have studied all these things very, easy, very easily way. But now I'm going to now I'm going to explain this with a very simple ways to understand you that you should not make any grammatical mistake while speaking. Okay. Somehow I have known so many students, so many people that they do grammatical mistake in genders also. So with this, you will clear all the doubts. Okay, so let's start. First of all, come to know the meaning of gender. Um, Noun which says about a male or female is called as gender. Is gender. Okay. जेंडर किसे कहते हैं अ नाउन दैट दैट स्पीक अबाउट मेल और फीमेल ओके उसे हम क्या कहते हैं जेंडर कहते हैं अंडरस्टूड सो इन दिस देयर आर फोर genders first one is masculine gender and the second one is feminine gender third is common gender and the fourth one is neutral gender okay. Masculine gender, as name indicates that male noun that denotes about a male person or a male animal is called as what masculine gender. ओके एक ऐसा नाउन जो मतलब कि किसी मेल या किसी बॉय को डिनोट करता हो उसे मेल जेंडर कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल वी विल सी हियर अ बॉय अ बुल किंग है ना ये सब लड़के मतलब लड़कों की कतार में आते हैं तो वी कैन से देम एज अ masculine gender okay. The second one is feminine gender. Feminine gender is that denotes noun is a that denotes a female person is called as feminine gender. Person or female animal, we can say female bird also. Anything as a female is known as a feminine gender. For example, girl, लड़की, एक औरत, उसे हम क्या उसे हम क्या कहते हैं फेमिनाइन जेंडर फेमिनाइन नाउन कहते हैं काउ एंड क्वीन ओके. Let's come to the common gender. Common gender is nothing but uh, a noun that denotes either either male or female gender is called as a common gender. That means ये जो कॉमनली यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो डॉक्टर. डॉक्टर में हम बाइफरगेट नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है तो इट इज नॉन एज कॉमन जेंडर. टीचर, टीचर आल्सो common noun. Principal, we can say principal is also common like baby, student, parent है ना. स्टूडेंट का भी हम फीमेल फीमेल एज अ मेल फीमेल हम डिनोट कर सकते हैं लेकिन
ये नहीं, स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट दैट मीन्स बॉय या गर्ल है। वो तभी हमें पता चलेगा अगर स्टूडेंट के आगे बॉय लगा है, या अगर हम, या फिर हम उसका नेम जानते हो, या फिर हम उसका हाँ मतलब कि जेंडर जानते हो, तो ही हम कह सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी अ कॉमन जेंडर, दैट इज स्टूडेंट, बेबी, पेरेंट। Okay, now come to the neuter gender. A noun that denotes a thing that is neither male or female is called as neuter gender. Okay. एग्जाम्पल न्यूट्रल जेंडर का ये है कि जिस कोई भी चीज जो जिसे हम मेल या फीमेल ना बोलें, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, थिंग में कार आ सकती है, टेबल आ सकता है, ट्री, हाउस, ये कंप्यूटर या हॉस्पिटल या स्कूल, है ना। ये सारे थिंग्स हैं, एक जगह है, थिंग्स हैं, चीजों में परिवर्तन किए गए हैं। तो इनको हम बोल नहीं सकते हैं कि इनमें जान है। ओके, ऑल दीज आर नोन एज न्यूटर न्यूटर जेंडर, राइट। Now let's come to the next part, that is noun numbers. Noun numbers. Okay. A noun has two numbers. कितने numbers हैं? Two numbers हैं, that is singular number and plural number. सिंगुलर नंबर हम उसे कहते हैं जहाँ पर बस एक ही चीज को डिनोट किया जाता है, या फिर एक पर्सन को डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर अ नाउन दैट स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग is said to be an singular number. That is one chair, one bag, one girl. That there should be a one thing, one person. ओके, लाइक चेयर, एक चेयर है तो वो सिंगुलर है। एक बैग सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है। ऑफ कोर्स इट इज अ गर्ल, फीमेल, फीमेल जेंडर पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही गर्ल है। क्या है? एक ही गर्ल है। तो ये फीमेल, ये एक सिंगुलर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट कम टू द प्लूरल number. The noun that stands for more than one person, animal, place, or thing is said to be in the plural number. Okay, more than one क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए, एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए, थिंग होना चाहिए, एनीवन कैन बी। एक से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। ओके, likewise, there are three chairs, two bags, four girls. तो इसे हम क्या माना जाएगा? इसे plural, because s is added here with this. Okay, so it is known as plural numbers. You understood? There are so many numbers. There are so many numbers. जहाँ पर जहाँ पर कैन से कि जहाँ पर सिंगुलर नंबर पे एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, बुक के साथ एस लगाएंगे तो बुक्स बन जाएगा। बैट के साथ बैट्स बन जाएगा। काइट के साथ काइट्स, कुक, कॉक, टॉप, टॉप्स, प्लेट, प्लेट्स, है ना। इनको हम प्लूरल भी बोलते हैं, इनको हम प्लूरल भी मेरा मतलब कहा जाता है इनको। एंड देर आर अदर डिफरेंट numbers also, like देर एस, लास्ट में एस एच लगा हो, या सी एच लगा हो, या डबल एस हो, या एक्स हो,
अगर किसी वर्ड के एंड में ये सब चीजें लगी हों तो उसके साथ हमें ईएस लगाना है। ओके। और ऐसे भी नंबर्स हैं नाउन में जहाँ पे लास्ट में वाई लगा हो, वाई लगा हो, तो उसे हम अगर लास्ट के वर्ड में वाई लगा हो तो हम आई ई एस लगाएंगे। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, see here I will tell you baby, baby, वाई है ना यहाँ पे, सो इन द लास्ट इट इज वाई, तो इसे हमने एस नहीं लगाना है, एस नहीं लगाना है, इसको हमने लगाना है बेबीज, आई ई एस। क्यों ये लगाना है? बिकॉज इट इज अ रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपकी लास्ट वर्ड में वाई आ रहा है कहीं पे भी तो आपने आई ई एस लगाना है, एस नहीं लगा सकते हो। ओके। एंड लाइकवाइज देयर आर other examples also. See, as bench, we can say bench, bench, सी एच है ना यहाँ पे, तो सी एच पे क्या लगेगा? benches, ई एस, बी एन सी एच ई एस, benches। ओके, ई एस लगेगा। अर्लियर आई टोल्ड यू ना, जहाँ पे एस एच हो या डबल एस हो या सी एच हो तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। नॉट ओनली एस, एस लगता है सिर्फ सिंगुलर पे, लाइक ब्रदर, ब्रदर, ये सिंगुलर नंबर है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ब्रदर्स। ओके। Why all these will be? Because it is a rule of English language. So that's why we have to take like this only. Understood? Likewise, there are so many. Like man, when we call it as a plural, it will be men. See, E they have taken. E. Ox. For ox also. En. Understood? Okay. So this was my noun class. Till then,